Hello students, welcome to the class of English Literature. Our today's topic is Sohrab and Rustam. It is a poem written by famous Victorian poet Matthew Arnold. The poem is included in the syllabus of BA Part 2nd, Paper 1st and Unit 2nd. Matthew Arnold, a major Victorian poet, was born on December 24, 1822 in England, and he died on April 15, 1888 in Liverpool. Matthew Arnold was English Victorian poet and literary and social critic, was noted especially for his classical attacks on the contemporary tastes and manners of the aristocracy and the commercial middle class. He became the apostle of culture in his works like Culture and Anarchy, which was published in 1869. Matthew was the eldest son of the famous Thomas Arnold, who was appointed headmaster of Rugby School in 1828. Matthew entered Rugby in 1837 and then he attended Oxford as a scholar of Balliol College. There he won the Newdigate Prize for his poem Cromwell, and he was graduated with second class honours in 1844. In 1847, Arnold became private secretary to Lord Lansdowne, who occupied a high cabinet post during Lord John Russell's Liberal ministries. In 1851, in order to secure the income needed for his marriage with Frances Lucy Whiteman, he accepted from Lansdowne an appointment as inspector of schools. This was to be his routine occupation. He engaged in travelling throughout the British provinces and also several times was sent by the government to inquire into the state of education in France, Germany, Holland and Switzerland. Two of his reports on schools abroad were reprinted as books, and his annual reports on schools at home attracted wide attention, written as they were in Arnold's own urbane and civilized prose. The work that gives Arnold his high place in the history of literature and the history of ideas was all accomplished in the time he could spare from his official duties. His first volume of verse was The Street Reveller and Other Poems by A., which was published in 1849. This was followed in 1852 by another volume with the same initials, Empedocles on Etna and Other Poems. So we can see during these first two volumes, Matthew Arnold did not show his name. In 1853 appeared the first volume of poems that was published under his own name. Marop, Arnold's classical tragedy, was published in 1858 and New Poems in 1867. After that date, though there were further additions, but Arnold wrote little additional verse. Now we will discuss about the poem which we are going to read. Sohrab and Rustam, an epic poem in blank verse by Matthew Arnold, which was published in 1853 in his collection Poems. Among Arnold's sources for this heroic romance, which is set in ancient Persia, was Firdausi's book, the Shahnamah. Shahnamah means Book of Kings. The poem is an account of Sohrab's search for his father, who disappeared years earlier. A warrior for the Tartars, Sohrab engages in battle with Persian forces, not realizing that Rustam, the Persian chieftain, is his father. Sohrab challenges the older man in single combat. Only when the young warrior
lies mortally wounded from Rustam's spear, does he talk of his birth. It is then that father and son realize their relationship. Grief stricken, Rustam promises to give Sohrab's body a royal burial. So we can see it is a story of father and son, and the poem which is included in the syllabus is just a fragment of this poem. So if we want to understand the poem, first we should know the complete story of Sohrab and Rustam. So first we will discuss the story of the poem, story of Sohrab and Rustam, and then we will understand the text of the poem. Sohrab and Rustam is a long narrative poem which is composed by, as you know, Matthew Arnold. This poem is an epic fragment. It is the part of an epic. Arnold has recreated the story which was originally written by Persian poet Firdausi. The story begins with Sohrab serving in the Tartar army. He knows that he is the son of Rustam, who serves in the Persian army. तो ये कहानी शुरू होती है कि सोहराब जो है वो जिस सेना में, जिस आर्मी में काम करता है, वॉरियर है, उस आर्मी का नेम है टाटर आर्मी, और उसे पता है कि वो रुस्तम का बेटा है, और रुस्तम यानी सोहराब के पिता जो है वो पर्शियन आर्मी में अपनी सर्विस देते हैं. रुस्तम इज़ अनअवेयर ऑफ हिज रिलेशनशिप टू सोहराब बिकॉज ही वॉज मिस इन्फॉर्म्ड बाय सोहराब्स मदर. रुस्तम को नहीं पता है कि उनकी सोहराब के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि सोहराब की मदर ने इनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी. व्हेन सोहराब वॉज बोर्न शी टोल्ड रुस्तम दैट ए डॉटर हैड बीन बोर्न. जब सोहराब का जन्म हुआ तो सोहराब की मदर ने बताया रुस्तम को कि उनके एक बेटी का जन्म हुआ है. शी डिड सो बिकॉज शी वॉज अफ्रेड दैट सोहराब वुड बी टेकन अवे फ्रॉम हर टू बी ट्रेंड इन आर्म्स. और सोहराब की मदर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि अगर पता चल गया कि बेटा हुआ है तो उसे आर्म्स की यानी युद्ध की ट्रेनिंग देने के लिए उसे दूर ले जाया जाएगा. सोहराब लर्न ऑल थिंग्स अबाउट हिज फादर फ्रॉम हिज मदर. और सोहराब को अपने पिता के बारे में सारी बातें अपनी मदर से पता चलती है. सोहराब डिसाइडेड टू फाइंड हिज फादर. बड़ा होने पर सोहराब ये निश्चय करता है कि वो अपने पिता को ढूंढेगा. ही थॉट दैट ही कुड अट्रैक्ट हिज फादर्स नोटिस बाय हिज स्किल इन द बैटल. उसने सोचा कि वो अपने पिता को अट्रैक्ट कर सकता है अपने स्किल को, अपनी कुशलता जो है युद्ध की, उसको दर्शाकर. ही जॉइन टार्टर आर्मी. देयर वॉज ए वॉर बिटवीन द टार्टर्स एंड पर्शियंस. सो टार्टर और पर्शियन सेना के बीच में एक युद्ध होता है. वन नाइट सोहराब मेड द प्लान इन हिज माइंड दैट ही वुड चैलेंज द पर्शियन चीफ टू सिंगल कॉम्बैट. एक रात को सोहराब ये प्लान बनाता है कि वो पर्शियन सेना का जो चीफ है उसे सिंगल युद्ध के लिए चैलेंज करेगा. ही थॉट इफ ही कुड डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ इन द सिंगल कॉम्बैट हिज फादर वुड कम फॉरवर्ड टू एक्नॉलेज हिम. उसने सोचा कि अगर वो सिंगल कॉम्बैट में अपनी कुशलता दर्शाएगा तो उसके पिता उसे पहचानने के लिए आगे आ जाएंगे. नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू टार्टर्स चीफ पैरनवीज़ा एंड पुट हिज प्रपोजल बिफोर हिम. अगली सुबह वो टार्टर आर्मी के जो चीफ थे पैरनवीज़ा, उनके पास जाता है और उनके सामने अपने प्रपोजल को रखता है. पैरनवीज़ा एडवाइज्ड हिम टू सीक फादर नॉट थ्रू फाइट बट इन पीस, बट सोहराब वॉज नॉट एग्रीड टू इट. उनका जो चीफ है टार्टर आर्मी का पैरनवीज़ा, वो सोहराब को ये राय देता है कि वो अपने पिता को शांति से ढूंढे, युद्ध के द्वारा नहीं. लेकिन सोहराब इस बात पर एग्री नहीं होता है. सो पैरनवीज़ा स्टूड बिफोर द पर्शियंस एंड अनाउंस्ड सोहराब्स चैलेंज. सो पैरनवीज़ा जो चीफ है वो पर्शियन आर्मी के सामने खड़े होकर सोहराब के चैलेंज को अनाउंस कर देते हैं. द पर्शियंस चीफ वॉज इन ए फिक्स.
पर्शियन चीफ जो है वो कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं बिकॉज दे हैड नन अमंग देम बोल्ड इनफ टू टेक अप सोहराब्स चैलेंज, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सोहराब के चैलेंज को स्वीकार कर सके। द पर्शियन चीफ हुज नेम इज़ फेरूद announced that they would find a champion to meet सोहराब्स चैलेंज। वो अनाउंस करते हैं कि वो किसी योद्धा को ढूंढेंगे जो सोहराब के चैलेंज को स्वीकार कर सके। रुस्तम एट फर्स्ट refused to fight, but later he accepted Sohrab's challenge, but he made a condition that he would fight incognito. रुस्तम जो कि पर्शियन सेना में है, उसने पहले तो इस युद्ध के लिए इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उसने सोहराब के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया इस कंडीशन पे कि वो युद्ध करेगा लेकिन वेश बदल कर। Accompanied by his horse रुक्स, रुस्तम प्रोसीडेड टू द बैटल ग्राउंड। अपने घोड़े रुक्स के साथ रुस्तम युद्ध के मैदान में आगे आता है। सोहराब ऑल्सो पुट ऑन हिज आर्मर एंड मेड हिज वे थ्रू द टाटर आर्मी टू मीट रुस्तम। सोहराब जो है वो भी अपने हथियार उठाता है और टाटर आर्मी के बीच में से आगे बढ़ता है रुस्तम से मिलने के लिए। ही डिड नॉट नो दैट इट वॉज रुस्तम हिज फादर। उसे नहीं पता था कि ये रुस्तम है उसके पिता। एंड रुस्तम वॉज मूव टू पिटी एट द साइट ऑफ दिस ग्रेसफुल यूथ। रुस्तम को दया आ जाती है इस ग्रेसफुल यूथ को, सोहराब को देख कर उस पर। ही स्पोक लाइक ए फादर, वो एक पिता की तरह बोलते हैं। एंड एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू अडॉप्ट हिम एज अ सन। सोहराब्स फिलाइल इंस्टिंक्ट सीम्स टू विस्पर दैट इट वॉज हिज फादर। सोहराब का जो आंतरिक मन था वो उसे कह रहा था कि उसके पिता हैं। ही बेग्ड रुस्तम टू टेल हिम वेदर ही वॉज नॉट रुस्तम। वो रुस्तम से पूछते हैं कि क्या वो रुस्तम तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना वेश बदल रखा था। ही वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिम। रुस्तम टुक इट एज ए ट्रिक ऑफ सोहराब एंड स्ट्रांगली बीड हिम आइदर फाइट और यील्ड। रुस्तम को लगा कि ये कोई ट्रिक है सोहराब की, और इसलिए वो स्ट्रांगली उससे कहते हैं कि या तो युद्ध करो या हार मान लो। द फाइट बिगेन बिटवीन सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब और रुस्तम के बीच में युद्ध होता है। इट वॉज अ डेस्परेट फाइट, बहुत ही भयानक युद्ध होता है। द स्काई डार्कन अबव देम, रात हो जाती है। द ग्लूम ग्रू थिकर, अंधेरा बढ़ने लगता है। रुक्स अटर्ड ए ड्रेडफुल क्राई, रुक्स जो है घोड़ा जो है वो एक चीख निकालता है। एट लास्ट रुस्तम ट्रांसफिक्स्ड सोहराब विद हिज स्पीयर, और अंत में रुस्तम जो है अपने स्पीयर से, अपने भाले से सोहराब पर अटैक करते हैं। एट दिस सोहराब सेड दैट हिज फादर रुस्तम वुड अवेंज हिज डेथ, और इस बात पर सोहराब कहता है कि उसके पिता रुस्तम इस की डेथ का बदला लेंगे। रुस्तम कुड नॉट बिलीव दैट सोहराब वॉज हिज सन। रुस्तम को विश्वास नहीं हुआ कि सोहराब उसका बेटा है। देन सोहराब बेयर्ड हिज आर्म्स एंड शोड द साइन, और तब सोहराब जो है अपनी आर्म्स पर से कपड़े को रिमूव करके और उनका जो फैमिली सिंबल था, साइन जो था, वो दिखाते हैं। रुस्तम फेंटेड टू सी इट, रुस्तम उसे देखकर बेहोश हो जाते हैं। व्हेन ही ब्रॉट बैक टू कॉन्शियसनेस ही वॉज गोइंग टू टेक हिज लाइफ, बट सोहराब प्रिवेंटेड हिम। He demanded his father's affection in his dying moments. Ruks too was moved by their grief and came near them. Sohrab seemed to envy the horse. सोहराब को घोड़े से भी ईर्ष्या होती है। Who had shared all the adventures of his father, जिसने उसके पिता के सारे एडवेंचर्स में उनका साथ दिया। Sohrab desired to let the Tartars go back in peace. Night descended on them. Rustam threw the horseman cloak around him and sat by his dead son. So in this poem, in this fragment which is included in the syllabus, we will read the last part of the story.